Everyone is requested to kindly settle down. हाँ हाँ कर लेंगे अपना बड़ी नहीं चार्टर्ड अकाउंटेंसी और कुछ भी नहीं लेजेंड्स की कहानी है. A very good afternoon to everyone present here. I, Tanmay Joshi, And I, Tejaswini Chitte, will take you all through the motivational session. We all understand that pursuing the CA course is not an easy journey, and it requires dedication, perseverance, and continuous motivation. Therefore, it gives us immense pleasure to welcome each and every one of you in this motivational session. Before we begin, I request Vikasa Core Committee member Srinivas Kulkarni to kindly escort our session chairman CA Divesh Harpilani sir to the stage, who achieved All India rank 6 in CA inter level and also achieved All India rank 13 in CA final level. thank you Srinivas. I now request you to felicitate Sir as a token of our appreciation for his valuable time and contribution to this event. Now, let us take a moment to introduce our esteemed speaker. I kindly request Srinivas to introduce CA Divesh Harpilani sir. Good afternoon, everyone. CA Divesh Harpilani is a highly accomplished chartered accountant with a diverse range of experience and achievements. Here is a brief profile highlighting his qualifications, work experience, mentorship activities, paper presentations, elocution competitions, participation in Model United Nations, youth parliaments, and other recognitions. Sir is a qualified chartered accountant with AIR 13 in CA final and AIR 6 in intermediate. He is also a BCom graduate. He is currently a management consultant at Bain & Company from November 2021. He has done his articleship from Deloitte Haskins and Sales LLP from August 2018 to August 2021. Sir has addressed sessions on how to present papers organized by ICI Ahmedabad branch 2022. He has also served as a jury member at Best Paper Presentation Competition organized by Ahmedabad branch of ICI 2022 and has addressed career counseling seminar at Tagore Hall for 12th grade students in 2022. He has addressed various seminars guiding students for exam preparations at various branches of ICI, commonly known as a ranker's talk. He has mentored over 10 plus students on He has mentored over 10 plus student platforms like Mentorify and Mentorverse and informally mentored 100 plus students. So successfully runs a YouTube channel CA Inside Angle to guide students with 2500 plus subscribers. CA Divesh Harpilani sir has been awarded in 4 national conferences and at international conference held in Pune 2019. Sir has also represented ICI at 34th International Students Conference, Colombo, Sri Lanka, awarded CEO's Young Leader Award at Town Hall 2021 at Deloitte, and has authorship of co-authored and various articles published in newsletter and journals. Overall, CA Divesh Harpilani sir has a strong academic background, extensive work experience, and has actively contributed to the mentorship and development of students in the field of commerce. His achievements in paper presentation, elocution competitions, and participation in Model United Nations Youth Parliament showcase his versatility and leadership skills. We welcome you, sir. We are
honored to have you here today, sir. As we all know, CA inter and final results were declared recently. Many cleared with flying colors, but some unfortunately couldn't. As it is rightly said, failure is not the end, but rather a stepping stone towards success. Embrace your setbacks and opportunities to learn, grow, and come back even stronger. It is now time to listen to the inspiring journey of our session speaker, CA Devesh Harpalani sir. From aspiring to accomplished, a story of utmost dedication and hard work. I request you, sir, to kindly grace the stage and inspire our inspiring chartered accountants. Not towards you. Hello. Better? Audible till the end, last row. Chalo. Hello everyone. Hello warriors. Okay, so I hear a few people saying hello, so a few people do consider themselves to be warriors. What about the others? Hello warriors. Okay, some of you might actually ask this question as to why am I calling you all warriors, and I'll answer that question in a bit. But before that, first of all, thanks Tanmay, Tejaswini and Srinivas for this wonderful introduction, and thanks for this humble invitation to me, bringing me here to share my story, bit of motivation that I am supposed to give. ये बताओ यार, आप में से कितने लोग मोटिवेशन के कंसेप्ट में मानते हैं? गलत सेशन रख दिया यार. Exactly. So honestly, I really feel, and ये statement आपने पहले भी सुना होगा कि motivation is like वो जो it's like a gas balloon के थोड़े टाइम तक रहता है फिर चले जाता है. The moment you go out of this room, the motivation that I give, if at all I do, will go away. Hence, I will not give you any motivation. I will just share facts, my journey, and this in no means is to say is an inspirational journey, but again, like I said, is all about facts because you all can relate with this. You are in the midst of the journey that I have been through, and I still am a part of it somehow. So let's in fact dive through. But before that, I come from Ahmedabad, and Chhatrapati Sambhaji Nagar and Ahmedabad have more than one similarities, but there's at least one similarity. Can one of you call that out? Obviously, I mean both are a lot of these, but both of our cities are World Heritage cities. So really proud, happy, humbled to be invited at Chhatrapati Sambhaji Nagar, and thanks to all of you for this invitation. Okay, so now let's dive right into it. I'll ask you to visualize 4 or 5 scenarios, and do try to visualize that in your head. Okay. One is, and by the way, this could be visualization in terms of a future event that will happen or a past event that has already happened. So the first one is, recall the moment when you are filling CPT/Foundation ka registration form. Just recall that moment, and if you're about to fill, visualize it. अपने दिमाग में सोचो, ठीक है? Second, for those of you who've appeared for exam, recall the day before exam, the first exam that you are giving in the CA course, how the nervous anxiety or nervous excitement, as some of you might want to call it, had kicked in for you or will kick in. Visualize करो. कल CA का एग्जाम है, the course that is supposedly very very tough, right? The third scenario I want you to envision is, आप एग्जाम हॉल में हो, you see question 1, let's say hypothetically X Limited, so and so, reading the exam paper. Visualize yourself into that examination hall reading the question paper and the feeling that is going on in your mind. Try to feel that right now. I know it's tough. अभी तो मस्त कैजुअली एसी में बैठे विदाउट एनी टेंशन, आई एम अज्यूमिंग. कुछ लोगों को शायद रिटर्न भरने का टेंशन होगा, अपना नहीं दूसरों का.
हम तो बिलो टैक्सेबल लिमिट में आते हैं, राइट? स्टाइपेंड तो हम लोग की कम ही है, ऑल्दो वो बात अलग है कि अभी हमारी स्टाइपेंड डबल हो गई है, नॉट लाइक 21 दिन में पैसा डबल, बट समवॉट सिमिलर. So the next scenario I want you to think about is, let's say hypothetically, either CA inter exams or CA final exams, the last exam, paper 8 in case of, or even foundation for that matter. घड़ी में 5 बज रहे हैं, लास्ट एग्ज़ाम ख़त्म हो रहा है, लास्ट क्वेश्चन ख़त्म करने की जल्दी जल्दी में हो, बेल बज गया, आपने पेपर दे दिया. उस टाइम पे आपके दिमाग में क्या चल रहा है? सोचो, अपने दिमाग में सोचो. कुड बी इंटर, कुड बी फाइनल, कुड बी एनीथिंग. खुद अपने मन में सोचा. हो सकता है गोवा का प्लान है कल, उसके लड्डू फूट रहे हैं मन में, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग. ठीक है. सो आई टोल्ड यू 4 सिनेरियोस अब तक. 5th सिनेरियो, डे ऑफ रिजल्ट एंड नॉट फाउंडेशन और इंटर. अब ये है सीए फाइनल का रिजल्ट. विजुअलाइज करना है यार. हमें को पता है हम सब सीए स्टूडेंट्स है यहाँ पे, तो सबका ही फाइनल का रिजल्ट बाकी होगा, एक्सेप्ट फॉर द रैंकर हु वाज हियर विद अस. आई एम नॉट श्योर इफ इज हियर, बट सबका ही फाइनल का रिजल्ट बाकी है. सो विजुअलाइज करो. आप रिजल्ट चेक कर रहे हो. आजकल तो जल्दी आना चालू हो गया, पहले लेट आता था काफ़ी. मेरा इंटर का रिजल्ट 9:45 बजे रात को आया था. पूरा दिन मैं इतना वेट करके इतना फ्रस्ट्रेट हुआ, मेरा चाहिए ही नहीं रिजल्ट, मैं जा रहा हूँ सोने. द मोमेंट आई डिसाइडेड कि मैं सोने जा रहा हूँ, उस टाइम पे फ्रेंड का कॉल आया, यार रिजल्ट आ गया. बट अब तो सुबह उठते फ्रेंड का कॉल उठाने के लिए आता है कि भाई रिजल्ट आ गया है, चेक कर ले. चलो वो छोड़ो, रिजल्ट आ गया है, ठीक है. अब वेबसाइट खोल रहे हो, ICI.nic.in. देयर आर मल्टीपल वेबसाइट्स, जो भी है छोड़ो, ठीक है. मोबाइल लिया आपने, खोल रहे हो, या लैपटॉप लिया, जो भी है. थिंक ऑफ योर सेल्फ इन दैट सिचुएशन. हार्ट बीट बढ़ रही है ना हार्ट बीट. डाल दो, रोल नंबर डाल दो. विजुअलाइज कर रहे हो ना यार, रोल नंबर डालो. वो पिन भी होता है, या तो WRO नंबर जो भी है डालो. इसके बाद कैप्चा डाल दो. गलत डल गया कैप्चा, गलत डल गया, इनवैलिड कैप्चा आया, एरर आया, वापस डालो. अगर आपका कैप्चा इनवैलिड नहीं आया ना, तो आप सीए स्टूडेंट ही नहीं हो. आ गया इनवैलिड कैप्चा, अब तो वापस ध्यान से डालना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है. अब क्या, रिफ्रेश, साइट नॉट लोडेड. ओके, फाइनली साइट लोडेड. कैप्चा लकीली वैलिड, रोल नंबर प्रिज्यूमेबली वैलिड. वो तो अब मार्कशीट देख के पता चलेगा कि सही डाला था कि गलत डाला था. फेवरेबल रिजल्ट आया तो सही डाला था, अनफेवरेबल आया तो गलत था. रोल नंबर चेंज करके देखते हैं, शायद रिजल्ट चेंज हो जाए. अब थिंक ऑफ इट, पास 2 बार लिखा है, फाउंडेशन में 1 बार लिखा होगा, इंटर एंड फाइनल में 2 बार लिखा, बट हम फाइनल के रिजल्ट की बात करें, 2 बार लिखा है पास. आपके दिमाग में क्या फील है वो सोचो, मन में सोचो. आप ऑब्वियसली किसी के साथ बैठ के रिजल्ट चेक कर रहे होंगे, आइडियली विथ सम ऑफ योर फैमिली मेंबर. पहले तो आपने देखा पास, लाइक यस, ठीक है. वो एक बच्चे का मीम होता है ना, यस वाला. अनफॉर्चुनेटली आई डिडंट गेट द टाइम टू हैव द पीपीटी, अदरवाइज मैं वो मीम लेके आता यस वाला. लाइक हाँ यार, यही शक्ल होने वाली है मेरी. एंड आजू बाजू देखो आपके पेरेंट्स को, एटलीस्ट मॉम विल बी अराउंड होपफुली, and then see the expression in her eyes. You're visualizing. Just think what will be the expressions in her face, on her face, but more importantly, what will be the feeling going on in your head. You know, that feeling, how much ever longer it goes on for, whether it is 2 seconds, 2 minutes, 2 hours, 2 days, 2 months, 2 years, 2 decades, could be anything. That is the feeling you all are working towards. मैंने आपको ये टारगेट दे दिया, ये फीलिंग के लिए आप मेहनत कर रहे हो, फुल स्टॉप. ये आपका मोटिवेशन है. मोटिवेशन इज नॉट समथिंग दैट आई विल गिव यू. इट इज दिस मोमेंट दैट यू विजुअलाइज योरसेल्फ इन इज व्हाट विल गिव यू मोटिवेशन. तो वो जब गुब्बारा फूट जाए, गैस खत्म हो जाए ना, ये मोमेंट विजुअलाइज कर लो, वो गैस रिफिल हो जाएगा. ये वाला जो गैस है ना, रिफिलेबल है एंड इंस्टेंटली रिफिलेबल है.
ये वाला मोमेंट सोचो। अच्छा ये बताओ, बिफोर गोइंग अहेड, विजुअलाइजेशन वाज एक्चुअली टू गिव यू दोस गूज़बम्प्स दैट every single CA student feels on the day of result, including myself. And now, while I'm talking about my results, I still feel those goosebumps. वो 10 मिनट तक साइट लोड नहीं हुआ, इतनी हार्ट बीट बढ़ गई थी, एक बार के लिए टेंशन हो गया, 108 फ़ोन करूँ क्या? नहीं किया मैंने, पहले रिजल्ट चेक करते फिर सोचते क्या करना है। 10 मिनट तक साइट लोड नहीं हुई। इन हाइंडसाइट आई एम हैप्पी कि 10 मिनट तक साइट लोड नहीं हुई। क्यों? बिकॉज नाउ आई विविडली रिमेंबर हाउ दोस 10 मिनट्स फॉर मी। बट हैविंग सेड दैट, उस टाइम पे जब 2 बार पास दिखेगा ना आपके स्क्रीन पे, योर एंटायर CA जर्नी विल फ्लैश इन योर माइंड in a jiffy. You'll be like, yes, it was all worth it. Okay, tell me something. How many of you are CA foundation students? CA inter students? And CA final students? Got it. Cool. CA students है ना, सबको है क्या जो CA student नहीं है? हो तो भी चलेगा, ये सेशन इक्वली एप्लीकेबल है। CA करने पे आपको मजबूर कर देगा, तो आपको CA स्टूडेंट बना देगा। ठीक है। सो नाउ आफ्टर हैविंग विजुअलाइज्ड ऑल ऑफ दिस, लेट्स नाउ टॉक अबाउट माय CA जर्नी, which I actually described to be nothing less than a roller coaster. I'll tell you why. And you'll also figure why I am calling it a roller coaster. It's not just my CA journey जो roller coaster है, आप सभी की CA journey roller coaster है। The only difference is, मेरे लिए वो रोलर कोस्टर का एंड आ चुका है, आप वो रोलर कोस्टर के बीच में बैठे हो अभी। द ओनली डिफरेंस इज आप अभी चिल्ला रहे हो और मेरी जर्नी खत्म हो गई है और मेरे को है वंस मोर। सम ऑफ यू माइट बी फीलिंग, यार ऐसी जर्नी वापस क्यों करनी है इस बंदे को, यार गलत इंसान को उठा लाया, यार सही इंसान को उठा लाओ, मेरे को वापस नहीं करना चाहिए। चलो वो जर्नी के बाद बात करते, वापस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक बात बताओ, all of you are CA students, you've obviously taken the decision to do CA. कितने लोग CA पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं? Honest, हाँ बेबी, कमाना है यार, money buys happiness. कितने लोग CA अपने पेरेंट्स के बोलने पे कर रहे हैं? गलत नहीं है, कर रहे तो कर रहे, nothing wrong in that by the way. कितने लोग CA एक अच्छे लाइफ पार्टनर के लिए कर रहे हैं? Oh, there are a few honest people. Very good, very good. Applause. अब the most important question. The most important question. कितने लोग CA अपने लिए कर रहे हैं? By the way, when you say अपने लिए कर रहे, could be either of the 3 questions also, depending on whether you are willingly doing it. And when I ask this question, whether or not you raise your hand, there should be a self introspection on मेरा आंसर yes है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। जब तक आप CA खुद के लिए नहीं करोगे ना, आपको ऐसे मोटिवेशनल सेशंस की जरूरत पड़ते रहेगी। द मोमेंट यू थिंक yes आई एम डूइंग इट फॉर माई सेल्फ, मेरे जैसे किसी की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है, एज सिंपल एज दैट, फिर वो गैस कभी खत्म होगा ही नहीं। सिंपल। चलो, now let's talk about the roller coaster that I was talking about, and I will give you a logic of the roller coaster, the word roller coaster that I am using towards the end. The only difference by the way between a roller coaster and my CA journey by the way is कि वो roller coaster कितने 30 seconds का होगा, 1 मिनट का होगा, 2 मिनट का होगा, मेरी CA journey 4.5 साल की थी। So that's the only difference, and I know you all will say that's the biggest difference, but let's still validate that analogy slightly later. Let's get started. And by the way, मैं मेरी CA जर्नी क्यों शेयर कर रहा हूं उसके मैं रीजंस भी बताऊंगा। I will share with you some learnings that I had from my CA journey, which I would have liked to share with a younger Divesh or the CA student Divesh, कि उसको पहले पता होता तो और अच्छा कर पाता। ठीक है, hence sharing it with you. So, एंड यहाँ पे मैं बुजुर्ग लगूंगा, मैं हूँ नहीं, हाँ, तो याद रखना। बट ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। हाउ आई डिसाइडेड टू डू CA, नॉट वेरी अनकन्वेंशनल, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वन ऑफ माई uncles is a CA, so
somehow someone put it into my head के बेटा देखो सीए बनना है. अब वो किसने बोला वो मेरे को नहीं पता. So the way I would put it is, मेरे को सीए क्यों करना था? 4th स्टैंडर्ड में एक टीचर ने पूछा कि आपका एम्बिशन क्या है? मैंने बोला मेरे को ये बनना है, दैट इज माई एम्बिशन. उसका आंसर, सीए लिखना छोटा है ना, इजी है ना. डॉक्टर, एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट की तो स्पेलिंग भी नहीं आती हो गया 4th स्टैंडर्ड में, वो डिफिकल्ट है. सीए लिखना इजी है, हेंस बोल दिया सीए. 4th स्टैंडर्ड के बच्चे, एंड बाय द वे दिस इज एक्चुअली अ ट्रुथ, कि नॉट द ट्रुथ के सीए इसलिए किया बिकॉज वो लिखना इजी था, बट आई हैड डिसाइडेड 4th से कि मेरे को सीए बनना है, एंड एंडेड अप डूइंग दैट. सो 4th स्टैंडर्ड के बच्चे को सीए का फुल फॉर्म भी नहीं पता होगा यार. तो in a way someone else took the decision for me is how you might think. But as I grew, by the way, I am from Gujarat, as I told you, and I come from a Sindhi family. So Sindhi family, Gujarat, you can draw some nexus in terms of a business mindset or a money mindset. And the fact that someone had already put into my head के सीए बेटा तेको करना है, तो आई डिसाइडेड कि चलो सीए करते हैं. द थिंग इज माई माइंड ग्रू टू बी इन अ मैनर इन विच इट वॉज फिट टू बी अ सीओ ओनली. मैं कुछ और कर ही नहीं पाता. आई मीन ऑब्वियसली करने का डिसाइड करता कर लेता. लाइक 10th में मेरे को साइंस की एग्जाम देखी, इतनी खुशी हुई, लाइफ की लास्ट साइंस की एग्जाम है. आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी ऑफ यू कैन रिलेट. सो हैप्पी साइंस के एग्जाम देखे, जान छूटी. ये क्या H2O पता नहीं, HC समथिंग समथिंग. I was so happy. And by the way, उतनी ही खुशी हुई जब मैंने सीए फैन की ऑडिट की एग्जाम लिखी. ये मेरी लाइफ की लास्ट ऑडिट की एग्जाम है. उस पे आते वो थोड़ा मैं आगे पहुंच गया, बट लेट्स कम बैक. Hence, I ended up taking commerce. So pretty much sorted यहाँ तक. Ended up taking commerce, ended up starting CA. Now हमारे टाइम पे CPT था, as it is known, Common Proficiency Test. 200 मार्क MCQs. आइडियली 200 में से 100 मार्क लाना, 50%, वो भी विदाउट नहीं, नेगेटिव मार्किंग था, बट ठीक है. इधर विच वेज 100 मार्क लाना शुड बी रिलेटिवली सिंपल, राइट? आई मीन मोस्ट ऑफ यू वुड अग्री. नाउ प्रॉब्लम वाज, लोग बोल के बैठे हैं कि ये टफ है, और रिजल्ट आता है 30-40%, मतलब 60 to 70% लोग फेल होते हैं. लाइक यार टफ लग रहा है मेरे को. तो मैं एग्जाम के एक दिन पहले तक ये सोच रहा था कि भाई बस 100 मार्क आ जाए, भगवान बस 100 मार्क आ जाए. एज ऑल द सी स्टूडेंट्स थिंक. 800 है तो 400, 400 है तो 200, और हर सब्जेक्ट में 40 ऑब्वियसली. बस भगवान 100 मार्क आ जाए, दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए. भगवान नारियल लारे चढ़ाने को नहीं बोला था मैंने, भगवान को घुस नहीं दी थी आप लोगों जैसे, पर प्रे किया था कि भगवान बस 100 मार्क चाहिए और कुछ नहीं चाहिए. अब द थिंग वाज, मेरे को क्यों प्रे करना पड़ा, इसलिए थोड़ा पीछे एक और है, इसलिए शुड आई रिमूव द माइक. ठीक है. सो 12th के बाद तुरंत सीपीटी की एग्जाम थी. सो 12th गॉट ओवर इन एंड ऑफ मार्च एंड सीपीटी वाज लाइक इन जून. तो आई हैड जस्ट 2 months टू गो. एंड 2 months के अंदर पहले तो बाय द वे व्हेन आई रजिस्टर्ड, आई आस्क्ड यू टू विजुअलाइज ईच ऑफ द सिनेरियोस ना. जब मैं सोच रहा था ये पॉइंट्स, मैंने खुद को विजुअलाइज किया. द मोमेंट आई हैड रजिस्टर्ड फॉर सीपीटी एंड हमारा ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन था, आई गॉट दोज बिग 4 बुक्स, मोटी 400-500 पेज की बुक्स. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन सीपीटी की बुक्स, बट वेरी थिक बिग बुक्स. घर पे लेके मैं सोचा यार ये 2 महीने में पढ़ना है. बोलते हैं कि देयर इज अ मीम ना कि ये सब, व्हाट डज दैट मीन? हाँ, ये सब एक ही जन्म के है. सो वो ही फीलिंग आया, बोला यार गलत घुस गया मैं. ठीक है, एनीवेज. तो अब वो 2-2.5 महीने जो थे, उसमें हमने क्या किया, स्कूल फ्रेंड्स थे, साथ में क्लासेस ज्वाइन किए. हम लोग क्लासेस में जाके, देयर इज अ गेम कॉल्ड, एंड एटलीस्ट द बॉयज वुड नो, मिनी मिलिटिया. वेरी गुड. वो गेम खेलते थे हम लोग अपने फोन में. पूरे 2 महीने हमने वो किया. अब मैं अगर 2 महीना गेम खेलूंगा तो यही सोचूंगा ना कि भगवान 100 मार्क आ जाए. Until the day before exam. Obviously, day of exam I realized कि नहीं यहाँ तो पार हो जाएगी. And I ended up getting 187 out of 200, which is 93.5%. And honestly, मेरे को ना ये 187 देख के लाइक हाँ ठीक है, ओके कूल. Why? Because exam के बाद I had figured कि मेरे को 187 आएंगे.
एंड द पॉइंट इज नॉट दैट मेरे को 187 आए, दैट्स नॉट द लर्निंग हो रही है, थोड़ा ज़्यादा एको हो रहा है. गिव मी अ हैंड माइक, लेट मी पुट दिस ऑफ. हेलो, will be audible until, ठीक है चलो ये दे दो. The point is not that मेरे को 187 आए, it's fine. ऑल इंडिया रैंक भी नहीं मिलता CPT में, so hardly matters. The point is जो बंदा एक दिन पहले तक सोच रहा था कि भगवान 100 मार्क्स आ जाए, वो बंदे को 187 आए. एंड ये सिर्फ मेरी स्टोरी नहीं है, काफ़ी लोगों की स्टोरी है. वाई डिड आई थिंक कि भगवान 100 मार्क्स आ जाए प्लीज़? बिकॉज लोगों ने बोला था CA टफ है. अब इस पर वापस आते हैं, आई सर्कल बैक ऑन दिस पॉइंट. चलो ठीक है, CPT हो गया, प्रीटी मच चिल, ओके कूल. एनीवेज वो तो टिक इन द बॉक्स था, कुछ फायदा था नहीं CPT करने से, एक्सेप्ट फॉर दैट एंट्री डोर टू इंटर जो मिलना ही था आइदर. नाउ इंटर में आई हैड माई फर्स्ट अटेम्प्ट इन May 18 एंड मैंने एक ही अटेम्प्ट किया, सो रादर. नाउ let's say 6 months into my classes, so I started my classes around July and let's say around November, December, less than 6 months. मेरी ना क्लास में बहुत पढ़ाकू लोग थे, पता नहीं कैसे, हर ब्रेक्स में भी पढ़ते रहते थे. अब इतने सिंसियर लोग थे, यानी इधर भी होंगे कुछ कुछ, बाजू वाला हो तो उसको देखना प्लीज, अभी उसको गिल्टी फील होना चाहिए कि क्यों पढ़ता है यार, दूसरों को डरा रहा है फालतू का. एंड बाय द वे दिस इज रैंकर सेइंग सो, मैं नहीं पढ़ता था, बोल रहा हूं. सो मैं ना डर गया. लेट्स कम बैक कर दिया, एम्बेरस कर दिया बाजू वाले को. अब वापस आ जाओ, वापस एम्बेरस करते, डोंट वरी, और चांसेस दूंगा मैं. अब मैं ना नवंबर दिसंबर तक इतना डर गया, मैंने बोला यार ये नया पार नहीं होगी मेरी, ये लोग इतना पढ़ रहे हैं, मैंने तो बुक खोली भी नहीं है. आई एम नॉट इवन किडिंग, मैंने नहीं खोली थी. आई हैव टू रिलीजियसली अटेंड लेक्चर्स, बट आई हैव टू नॉट डू सेल्फ स्टडी बिकॉज टाइम नहीं मिलता था यार. फॉर ऑल दोज ऑफ यू हु आर इन इंटर और हु आर इन फाइन कैन रिलेट कि यार 8-10 घंटे के तो लेक्चर होते हैं. मैं 6 घंटे के स्कूल में थक जाता था. मैं कहाँ 8-10 घंटे पढ़ूंगा बैठ के, और उसके बाद घर जाके पढ़ाई, ये तो ना होना मेरे से. तो मैं डर गया, मेरे सर के पास गया, बोला कि सर 2 ग्रुप हैं एंड फॉर दोज इन फाउंडेशन कंटेक्स्ट इज 4 सब्जेक्ट, 2 ग्रुप्स, यू कैन अपीयर 1 at a time, so 4 exams at a time. सो आई टोल्ड हिम कि सर मैं ना सोच रहा हूँ एक ही ग्रुप दूँ, मतलब 4 ही सब्जेक्ट दूँ, मेरे से 8 सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं होगी. यानी मैंने क्यों बोला वो भी बताता हूँ. ऑब्वियसली बिकॉज लोग इतना पढ़ रहे थे और मैं नहीं पढ़ रहा था. बट ICAI की ना मॉड्यूल्स आई थी घर पे, कितनी बुक्स होगी सोचो. फाउंडेशन वाले गैस करो यार, इंटर फाइनल वालों को तो पता ही होगा, गैस करो. एक 9 एक नंबर आया, दूसरा बताओ. 25 एक नंबर आया, दूसरा बताओ. ठीक है, 12, 7, 20, 25 नंबर्स आ गए. देयर वर 24 और 26 मॉड्यूल्स, ठीक है, एंड विथ ईच बुक एटलीस्ट 300 पेजेस थिक. तो मैं अगर 300 इंटू 24 भी करता हूं, कितना होता है? 7200 पेजेस. और हमको मिलने वाले थे क्लासेस के बाद 2 महीने टू स्टडी, 2.5 महीने पकड़ लो बिफोर द एग्जाम. यार 2.5 महीने में 7200 पेजेस, 2.5 महीने इज हाउ मेनी डेज? इट इज 75 डेज, 72 डेज पकड़ लो. एक दिन में 100 पेज आपको पढ़ने हैं, मतलब वो भी आप एक ही बार पढ़ोगे तो होगा. यार एक दिन में 100 पेज, इतनी तो यार मेरी इकोनॉमिक्स की 12th स्टैंडर्ड की बुक थी, उससे थोड़ी बड़ी थी, बट फिर भी लाइक कैसे होगा ये एक दिन में 100 पेज, उसमें भी 10 सब्जेक्ट्स लाइक EIS एंड ऑडिट. फाउंडेशन वालों को पता चलेगा ये कौन से सब्जेक्ट्स है, रुक जाओ आते हैं उस पर भी आते हैं. लाइक यार ये तो नहीं हो पाएगा. तो मैंने जाके सर को बोला सर मैं 2 ग्रुप नहीं दे रहा हूँ, मैं एक ही ग्रुप दे रहा हूँ, जस्ट FYI फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मैं आपको बताने आया हूँ. तो सर ने बोला क्यों? बोला सर मेरा May 18 में अटेम्प्ट था इंटर का, रादर आई विल लाइक टू कॉल इट May 18 में एग्जाम था. द मोमेंट यू से अटेम्प्ट, इट इज काइंड ऑफ मेकिंग यू थिंक कि एक और अटेम्प्ट आने वाला है. डोंट कॉल इट एन अटेम्प्ट ना. अब आई नो कि वो इट्स नॉट आवर फॉल्ट, वो चलते आ रहा है तो हम भी ऐसे ही बोलते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट ये वो, बट लेट्स ट्राई टू अवॉइड दैट प्रैक्टिस एंड आई एम ऑल्सो ट्राइंग. बोला सर May 18 में एग्जाम है और मेरे को लगता नहीं कोर्स खत्म होगा May 18 तक. सर ने क्या बोला पता है? तू May 19 में भी एग्जाम देगा ना, तब भी कोर्स नहीं खत्म. देखिए एग्जाम तो देना पड़ेगा. ओके सर, मैंने एग्जाम दे दिया.
मैंने एग्जाम दिया वही सेम एग्जाम के पहले, भगवान 40 और ओवरऑल 400, 800 में से 400। एग्जाम दिए, एग्जाम वेंट वेल, सो टू बी ऑनेस्ट पता चल गया था कि पास तो हो जाएगा, उतना आइडिया आ जाता है ब्रॉडली, अनलेस लिटरली बाउंड्री लाइन पे हो तो डिफिकल्ट है, अदरवाइज पता चल जाता है। डे ऑफ द रिजल्ट, ये वही ना कि रिजल्ट आ नहीं रहा है, मैं तो सोने चले गया, फिर वापस उठ के आया, ये वो वाला ही रिजल्ट है, वही वाला रिजल्ट। आई सॉ ऊपर लिख रखा है पास विद डिस्टिंक्शन। पास विद डिस्टिंक्शन मीन्स 70+%, डिस्टिंक्शन इज एट 70%। मैंने सीधा टोटल जाके देखा विच इज 640, 640 इज 80%। वाह। एंड उस टाइम पे ऑल इंडिया रैंक 3 था 646 पे, विच मीन्स मैं समझ गया कि मेरा वर्स्ट के सिनेरियो भी रैंक AIR 9 होगा। वर्स्ट के सिनेरियो मैं 6 ऐड करूं अगर, लाइक 640 + 6 इज 646, तो 3 + 6 रैंक करके AIR 9 होगा। मैं समझ गया टॉप 10 में रैंक है। फिर मेरा तो रैंक वाला पेज नहीं खुला, किसी और ने चेक करके बताया कि ऑल इंडिया रैंक 6 है। Now why I'm saying so is, ऑल इंडिया रैंक 6 है वो बड़ी बात नहीं है, बाय द वे बहुत बड़ी बात है, इट्स आई एम नॉट डीमीनिंग माई रैंक बाय एनी चांस, बट इस पॉइंट पे पता है मेरे को क्या रियलाइजेशन हुआ, बोले यार फालतू का आई सब्सक्राइब्ड टू अदर्स डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज टफ, एंड दैट इज व्हाट आई फील इज द प्रॉब्लम विथ अस एज CA स्टूडेंट्स, कि हम पहले से ही सोच लेते हैं कि टफ है तो मेरे से नहीं होगा। हर अटेम्प्ट में, रादर हर एग्जाम में 12,000+ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्वालिफाई। वो 12,000 भी तो ह्यूमंस ही है ना, ऐसा तो है नहीं कि वो 24 घंटे इंटू 4 साल रूम में बैठ के पढ़ रहे थे। टफ है ना, तो क्या 24 घंटे इंटू 4 साल रूम में बैठ के पढ़ रहे थे दरवाजा बंद करके 12,000 लोग एवरी एग्जाम, डू यू थिंक? नहीं ना, तो आपके मेरे जैसे ही लोग हैं। If they can do it, why can't we do it? That is the realization. Honestly, CPT के बाद ही हो जाना चाहिए था, पर CPT में ना ये realization इतना नहीं हुआ because ultimately MCQ एग्जाम था, तुक्के भी तो राइट पढ़ते हैं, तो वो ना satisfaction नहीं है। I did not credit myself with that success. I like ठीक है यार तुक्के राइट पढ़ गए, बट इंटर being subjective exams, हमारे टाइम पे इंटर में भी MCQs नहीं थे, which means 800 marks was subjective. So I figured कि boss, if I'm able to score 80% out of 800, I can do it. And it's not about the score. The whole point is I was always someone who could have done it in the last 2 months that I did. It's just that मैं फालतू का डर गया, and मेरे को किसी ने डराया नहीं, मैं डर गया because I subscribed to others' definition of what is tough. So 2 takeaways. The CPT वाला mini militia वाला takeaway. Mini militia कैसे भूल सकते हैं यार? कि people keep saying CA is all about studies. Is it? My answer is, and you may all find out your answers, which by the way should be this, the answer is no. CA is not all about studies. There is much more beyond it, including playing mini militia. Could be something else for you, but there is a lot of fun as well in the process. So and this does not by the way mean कि आपको पढ़ना नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा यार, वो 7,200 पेजेस कौन पढ़ेगा? those books won't read themselves ना, और हम रोबोट तो हैं नहीं, वो तो होने वाला नहीं है, पढ़ना तो पड़ेगा। but the whole point is enjoy when you can, study when you should, full stop. But CA is not all about studies. This is number 1 takeaway. Number 2 takeaway, honestly, sky is the limit. And this is not a motivation, this is a fact. मैंने ना सोचा भी नहीं था कि मेरे को ऑल इंडिया रैंक 6 आएगा, मैंने कभी उसके लिए एम भी नहीं किया, ऑनेस्टली स्पीकिंग। देन दिस इज एन इंटर, फाइनल इज अ डिफरेंट बॉल गेम। मैंने एम किसके लिए किया था? 40 मार्क और 400 मार्क, पर ऑल इंडिया रैंक 6 आया, विच मीन्स sky is actually the limit unless you set a boundary for yourself. So while 40 and 400 were my primary targets, मैंने ये नहीं सोचा कि सिर्फ 40 ही लाने हैं, 40 तो लाने ही हैं, 400 तो लाने ही हैं, उसके much beyond is what where we need to go. 2 more takeaways within inter तक आ रहा हूँ, उसके बाद आगे जाते हैं। जब ये पूरा 1 group 2 group scenario ना, I spoke to a cousin of mine who was a couple of years senior within CA journey only. तो उस टाइम पे ना मैंने एक WhatsApp का DP रखा था which was
ऑल द वाटर इन दिस वर्ल्ड कांट, ध्यान से सुनना, ऑल द वाटर इन दिस वर्ल्ड कांट सिंक अ शिप अंटिल इट गेट्स इनसाइड. ठीक है, पूरी दुनिया का पानी एक शिप को डुबा नहीं सकता अनलेस वो उसके अंदर घुस जाए. समथिंग एज सिंपल एज दैट. मैंने रख दिया, पता नहीं क्या सोच के रखा था. तो मेरे ना कजिन ने रैंडमली मेरे को मैसेज किया, कैन यू थिंक ऑफ सम रिलेटेबिलिटी विथ योर पोजिशन. नहीं यार. तुरंत मेरे को समझा वो क्या बोलना चाह रहा है. हिज टेक अवे वॉज, एंड अपने दिमाग में टेक अवे सोचना अपने लिए, बट हिज टेक अवे वॉज until and unless you give exams there is no passing or failing. एग्जाम दोगे तब तो पास होगे, तब तो फेल होगे. प्रॉब्लम क्या है हम सब का, एंड व्हेन आई से हम सब इट इंक्लूड्स मी बिकॉज आई वाज इन द सेम पोजीशन कि मैं एक ही ग्रुप देने वाला था, कि पहले से ही हार मान ली कि मेरे से नहीं होगा. क्यों? बिकॉज लोगों ने बोला कि टफ है. क्योंकि मेरे बाजू वाला पढ़ रहा था, मैं नहीं पढ़ रहा था. वो जो बाजू वाला पढ़ रहा था वो भी पास तो हो गया, पर उसको रैंक नहीं आया. ना दिस डज नॉट मीन कि जो ब्रेक्स के बीच में पढ़ते हैं उनको रैंक नहीं आएगा. अभी देखना हो तो अपने बाजू वाले को देख लो जिसको एम्बेरस कर रहे थे, तभी बोल दो कि यार तेरे को रैंक नहीं आएगा, मेरे को आएगा रैंक. बट द होल पॉइंट इज everyone has their own methodologies. एग्जाम्पल, इंटर में मेरा एक फ्रेंड था, वो लिटरली 14 घंटे दिन का पढ़ता था, 14 आवर्स अ डे. There is another friend, वो सब pretty chill guy, वो 7 hours भी मुश्किल से पढ़ता था. Most days he would not even touch 7 hours. His total marks were at least 30-40 marks more than that guy जो 14 घंटे पढ़ता था. And this does not again mean कि 14 घंटे पढ़ोगे तो मार्क्स नहीं आएंगे. This is a wrong takeaway. All I am trying to say is पास दोनों हो गए, जिसको जो समझा. अब कोई उठ के सुबह 4 बजे पढ़ेगा, कोई 4 बजे पढ़ के सोएगा, पास तो दोनों हो सकते हैं. किसी ने 50 पेपर लिखने की मेहनत की, किसी ने एक भी पेपर नहीं लिखा, विच इज बाय द वे मी. पास दोनों हो गए, हो सकता है रैंक भी दोनों को आया. तो द होल पॉइंट इज योर डेस्टिनेशन इज द सेम, पर रास्ता अलग अलग हो सकता है. मेरे को अगर यहां से अहमदाबाद जाना है तो सिर्फ एक ही रोड नहीं है. हाँ, देयर माइट बी ए शॉर्टेस्ट रोड, बट वो शॉर्टेस्ट रोड भी सबके लिए अलग अलग होगा. इन द रियल लाइफ रोड की बात मत करो, दैट्स जस्ट एन एनालॉजी. सो देयर आर मल्टीपल पाथ्स एंड इट इज ऑन यू विच पाथ यू वांट टू टेक. सो टेक द पाथ दैट सूट्स यू द बेस्ट रादर देन जो लोगों ने बोला है. एंड अल्टीमेटली लोग तो कहेंगे, क्योंकि लोगों का काम है कहना. ये चीज याद रखना जब तक सीए ना बन जाओ, उसके बाद भी याद रखना, बट ये तो याद रखना ही रखना, बिकॉज द मोमेंट यू अग्री कि यार लोगों ने बोला है टफ है, कहाँ टफ है, एंड आई एम नॉट सेइंग इट इज नॉट टफ, उस पर आते हैं. वेदर इट इज टफ और नॉट वो क्वेश्चन भी आंसर करते हैं हम लोग, बट डोंट सब्सक्राइब टू अदर्स डेफिनेशन ऑफ टफनेस. अब ये सब छोड़ो, ये सबसे बाय द वे इंपॉर्टेंट टेक अवे मेरे को देना था, बिकॉज हम सब की गाड़ी सबसे पहले यहीं पे अटक जाती है. A lot of my very smart friends did not even appear for exams because of the fear of exams. A lot of my very smart friends got very scared when they saw that tough paper and they said, अब next attempt. मई नहीं तो नवंबर, नवंबर नहीं तो मई, मई के बाद नवंबर, नवंबर के बाद मई, वो साइकिल चलता रहता है. After every November there is May. तो प्रॉब्लम इज ये वाली मेंटालिटी ना हमको हिट कर जाती है, एंड ये हमारे साथ रहती है, एंड वी गेट स्टक इन दैट विशियस सर्कल. अब इस पे विल कम लेटर एंड आई विल टॉक अबाउट द फाइनल का सिनेरियो. नाउ अ रैंडम थिंग, बीच में बीकॉम एग्जाम्स आई थी, सेमेस्टर 1 बीकॉम एग्जाम्स, फाउंडेशन के बाद एंड सीपीटी के बाद एंड इंटर के पहले. मेरे सारे, अब हमको क्लासेस से छुट्टी दे दी 10 दिन की, एंड जाके एग्जाम दो यार, यूनिवर्सिटी की एग्जाम है. वो लोग बैठ के दिसंबर में पढ़ रहे हैं इंटर का. मैंने बोला यार कल यूनिवर्सिटी का पेपर है, विच इज़ अ बिग डील अल्टीमेटली. ठीक है, आई नो बीकॉम की इतनी रिस्पेक्ट नहीं की जाती, बट इट्स स्टिल यूनिवर्सिटी की एग्जाम विच इज इन अ वे इक्विवेलेंट टू योर बोर्ड एग्जाम. तो आई एम लाइक थोड़ी तो कीमत दे दो, एग्जाम के एक दिन पहले तो पढ़ लो. दे लाइक नहीं, हम तो एग्जाम के 2 घंटे पहले बुक खोल के देख लेंगे, मतलब क्या ही है यार, सीए पढ़ रहे हैं, बीकॉम तो पास हो जाएंगे. मेरे से ये हुआ नहीं हजम. तो मैं ना एग्जाम के 10 दिन रोज एग्जाम के पहले पढ़ के जाता था बीकॉम के लिए. तो मैं एग्जाम के लिए पढ़ के जाता था. हुआ क्या, जिस दिन रिजल्ट आया बीकॉम का, बाय द वे आई गॉट फर्स्ट रैंक इन द गुजरात यूनिवर्सिटी अमंगस्ट
56,000 students, which included full-time BCom students. And ये जो लोग थे ना, जो लोग बोल रहे थे यार हम सीए स्टूडेंट्स हैं, पास तो हो ही जाएंगे, इनमें से कुछ लोग अकाउंट्स के पेपर में फेल हुए. सोचो, अब प्रॉब्लम क्या था? खुद का दिमाग नहीं चलाया उन्होंने. उनके सीनियर ने बोल दिया यार बीकॉम के लिए कौन पढ़ता है, मत पढ़, बैठ जाए एग्जाम में. उन्होंने वही किया जो उनके सीनियर ने बोला. उन्होंने सुनी दुनिया की, ना अपनी. मैंने सुनी अपनी. मेरे को आगे यूनिवर्सिटी में रैंक 1. एंड दैट इज अगेन व्हेन आई, एंड बाय द वे द प्रॉब्लम इज यूनिवर्सिटी रैंक 1 आने के बाद वाइल आई न्यू कि मेरा डिसीजन सही था, आई कुडंट क्लेम इट बिकॉज इंटर एग्जाम तो बाकी है ना, उसमें फेल हो गया तो लोग बोले कि देख बीकॉम पढ़ रहा था इसलिए इंटर में फेल हो गया. आई कुडंट क्लेम इट. बट आफ्टर इंटर finally now people knew कि I got university rank 1 plus inter में I got AIR 6. That is when people also understood, and that is when I also understood कि my decision was correct. तब भी मेरे को तो मेरे पे विश्वास था ही, बट अदर्स का वैलिडेशन नहीं था मेरे पास, बिकॉज लोग मेरे डिसीजन से अग्रीएबल नहीं थे. द होल पॉइंट इज, अगर आपको खुद पे भरोसा है, go ahead with whatever decision you take, even if by the way that decision is मैं बीकॉम के 2 घंटे पहले ही पढ़ूंगा. That is fine. It is your choice at the end of the day. You need to have that self belief, that confidence, that trust in you कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या कर रही हूँ. दुनिया जाए भाड़ में. Even if Devesh has said something and doesn't be applicable to you, don't accept it. I will not force any thought, any learning on you. But ये सारी मेरी learnings थी. So अब तक की 3 learnings. Could be more, but at least 3. 1, mini militia. CA is not all about studies. There is also fun. So enjoy while you can, study when you should. जब पढ़ना है तब तो पढ़ना ही है ना यार. कल एग्जाम हो गया, आज मिनी मिलेटर नहीं खेलोगे आप. So you need to have those boundaries clear in your head. Second, लोग तो कहते रहेंगे, लोगों का काम है कहना. Don't subscribe to others' definition of anything, especially defining toughness in your CA course. And the third thing that I just said, believe in yourself, because ultimately sky is the limit. Once you have decided कि ये, and the thing also is, you know, once you take a particular decision, you will have full conviction. उसको आप इतना शिद्दत से फॉलो करोगे ना उस डिसीजन को कि यार अब तो मैं प्रूव करके रहूंगा कि मैं जो बोल रहा था वो सही था. एंड द मोमेंट यू डिसाइड दैट, वो सही हो जाएगा, बिकॉज आपने एफर्ट्स मारे यार उसके लिए. चलो ये सब छोड़ो. दिस वाज स्लाइटली द बोरिंग पार्ट, बट ऑनेस्टली द मोर इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज लोग तो कहते रहेंगे, लोगों का क्या काम है कहना. अब लेट अस कम टू प्रैक्टिकलिटी. इंटर में रैंक आ गया. आई वॉज वेरी हैप्पी, टॉप ऑफ द वर्ल्ड एक्सेट्रा. इट वाज लाइक नो, स्टिल नॉट द एंड. अभी तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी तो लंबी जर्नी बाकी है यार, अभी तो फाइनल बाकी है. लाइक ओके, आर्टिकलशिप. आई डिड माई आर्टिकलशिप इन बिग 4 इन इनकम टैक्स, बट ठीक है, आर्टिकलशिप पे प्रीतम सर रियली स्पोक वेरी वेल, एंड बाय द वे I kind of agree to most of his points, so I'll not go on to the decision of articleship. Up within my 2.5 years of articleship before CA final, and for a lot of you who will now be giving inter in new course if 2 साल का articleship होगा, I went, and I'll थोड़ा summarize this. I presented papers, and while you know Srinivas already spoke about this, I presented papers in a CA student conference like this into 6. So I presented papers in 6 CA student conferences across India, which is Guwahati, Chandigarh, Pune, Indore, Vadodara, Ghaziabad. To the extent that मेरे रिजल्ट था 13 सितंबर को, मैं 12 सितंबर को गाजियाबाद CA स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस पे पेपर प्रेजेंट कर रहा था. That was my level of dedication towards public speaking, towards paper presentation, the love towards ICI events. Thank you for the acknowledgement, but this is not bragging. I'm trying to make a point and I'll reach there. One of these conferences was Pune International CA Students Conference, where 15 paper presenters में से I won the second best paper presenter award. And ICI का ये there's a thing कि श्रीलंका में International CA Students Conference होता है, just like there is in India, and India से delegates invite होते हैं श्रीलंका में. Now ICI का one of the criteria is India की, that is ICI की International CA Students Conference जो होती है, which was that year in Pune, उसके top 3 best paper presenters get to represent ICI at Sri Lanka. So I was fortunate enough to
represent ICI at Sri Lanka's International Students Conference. Which means I ultimately ended up representing India, which is a great feat. Conference को side में रखो. Elocution. 2019 में ब्रांच इलोक्यूशन भी मैं नहीं जीत पाया था. 2020 में हुआ ही नहीं बिकॉज कोविड था. 2021 आफ्टर माई एग्जाम्स बट बिफोर रिजल्ट्स ब्रांच आई वन, रीजनल आई क्वालिफाइड, आई रीच नेशनल इलोक्यूशन एंड आई वॉज इन द top 20 in the national elocution of ICI that year, which is in 2021. So one is paper presentations, which led me to going to Sri Lanka, and then elocution I was in the top 20 in the national elocution of ICI. इसके सिवाय कॉलेज में भी we had a lot of these quizzes, elocution competitions, and मेरे में ना बोलने का एक कीड़ा है जो थोड़ा बहुत दिख रहा होगा आपको शायद, तो मैं बहुत बोलता हूँ. तो मेरे को ऐसे अपॉर्चुनिटीज चाहिए, तो मैं कॉलेज में जाके भी हम लोग, आई वॉज इन बिग फोर, सो लकीली सैटरडेज यूज टू बी ऑफ फॉर अस. मैं रिक्वेस्ट करता था कॉलेज में कि प्लीज़ ये कंपटीशन सैटरडे को रखो ताकि मैं आ सकूँ. एंड कभी दे वुड ऑनर, कभी दे वुड नॉट ऑनर, बट आई यूज्ड टू ट्राई. इवन कॉलेज की बात मैं अगर करूँ तो व्हाट हैपेंड इज, हमारे कॉलेज में ना, एंड बाय द वे देयर आर 2 people फ्रॉम माई कॉलेज ओनली फ्रॉम अहमदाबाद, एंड दे कैन वाउच फॉर द फैक्ट दैट वी हैव compulsory attendance 50% in that college. The college name is HL, College of Commerce, and you can check. तो as CA students you all will agree कि यार BCom के कॉलेज कौन अटेंड करने जाएगा. एग्जाम तो छोड़ो, दिवेश ने बोल दिया कि मैंने पढ़ लिया BCom के एग्जाम्स के लिए, बट कॉलेज कौन अटेंड करेगा BCom का. 99 out of 100 people I asked said don't go for this college. इस कॉलेज के लिए मत जाओ. I was like यार 12th में इतने परसेंट आए, लाके करना क्या है कॉलेज में, अगर एडमिशन नहीं ले रहा हूँ मैं, दैट इज अहमदाबाद बेस्ट कॉलेज, मैं क्यों ना लूँ यहाँ पे. लाइक देख लेंगे, फोड़ लेंगे. आई टुक एडमिशन एंड आपको पता यूनिवर्सिटी में तो फर्स्ट रैंक आ गया. आई फॉर्चुनेटली वन इन अ लॉट ऑफ दीज इलोक्यूशन कॉम्पिटिशंस एक्सेट्रा एज वेल. मैं जब स्कूल में था ना, वी यूज्ड टू हैव द बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड इन स्टैंडर्ड 9, विच आई बैडली वांटेड, बट आई डिडंट एंड अप विनिंग. इन कॉलेज वी हैव an all-rounder student of the year in 3rd year, which I fortunately now ended up winning, because they appreciated me trying to be an all-rounder in the sense that managing CA studies plus articleship plus student conferences plus college attendance plus college quizzes, elocution competitions, etc. And I won the all-rounder student of the year award in the 3rd year of college. Again, for me, more than the award, what I was happy about, and this is again a learning that I'm sharing with you, those 99 out of 100 people had told me not to go for that college. But I still went for that college because मेरे को जाना था. And that worked in my favor. So if you want to do something very badly, you will end up finding ways and means to do it. And by the way, it was not an easy sale. 50% attendance करना है super tough, especially when you are doing articleship, plus college, प्लस ये स्टडीज तो है ही. अल्टीमेटली फाइनल का रैंक इज ऑल्सो एट स्टेक इफ यू थिंक अबाउट इट. एंड इंटर में रैंक लाने के बाद तो फाइनल में रैंक लाने का प्रेशर बढ़ जाता है, बिकॉज अगर आप फाइनल में रैंक नहीं लाते हो तो लोग क्या बोलेंगे पता है, एक बार तो भूल से रैंक आ गया, क्योंकि लोगों का काम है कहना. ठीक है, सो प्रेशर और बढ़ जाता है. बट एनी विच वेज आई गेट अ डैम. नाउ द थिंग इज व्हाई आई शेयर्ड विथ यू ऑल ऑफ दिस. सो द कॉलेज वाला थिंग आई शेयर्ड यू स्पेसिफिकली अगेन टू रीइटरेट द पॉइंट दैट so long as you have a lot of conviction in something, even if that is very unconventional, even if that path is less trodden by, उदाहरण 2 roads diverge into a yellow wood, एक famous Robert Frost की poem है, the road not taken. वो वैसा ही है कि you actually end up taking that road and you end up figuring for yourself if that road was meant for you. But you need to have full conviction in yourself. You need to have that self-belief. The second point was, क्यों मैंने बोला ये conferences and all of this. A lot of this, by the way, I did few other things also volunteering at Vikasa वगैरह, but not mentioning that all of it right now. When I say so is, लोग क्या बोलते हैं, CA is all about studies. तो लोग क्या बोलते हैं कि आप 24 घंटे रूम में बैठ के सिर्फ पढ़ रहे हो. आप CA स्टूडेंट्स हो ना, बताओ आप पढ़ते हो क्या 24 घंटे रूम में बैठ के? कितने लोग पढ़ते हैं? अगर कोई पढ़ रहा हो तो अच्छी बात है यार, मतलब प्लीज रेज योर हैंड्स. 24 घंटे छोड़ो, कोई 10 घंटे भी रोज डेली बेसिस पढ़ता है, मेरे को बताओ. फिर
एग्जाम के टाइम, हाँ अब यार वो तो पढ़ना ही पड़ेगा ना एग्जाम के टाइम पे यार, ऑल्दो उस पे भी आते हैं ना वो 10 घंटे एग्जाम के टाइम पे पढ़ना, उस पे भी आते हैं. सो द होल पॉइंट इज, वेयर वाज आई? 10 घंटे, उसके पहले मैंने क्या बोला? CA is not all about studies. Again, back to the whole toughness वाला thing. लोगों ने आपको बोल दिया है कि CA मतलब पढ़ाई, तो आपने मान लिया है CA मतलब पढ़ाई और आप पढ़ाई के सिवा और कुछ नहीं कर रहे हो. गलती किसकी है? आपकी. And by the way, आपकी नहीं. You should all actually give yourself a round of applause right now for being here attending this CA Students Conference. Because by taking that step, you've already taken a step in the right direction. And I am not saying it to, make you feel good or make Vikasa people feel good कि यार आपकी conference success है. नहीं, I really believe in events like these. Because only when you come to events like these, or in fact participate in events like these, will you be able to develop that network. लोग बोलते हैं ना कि ये लोग को networking नहीं आता. कैसे आएगा? आप करते ही नहीं हो. करो तो आ जाएगा. कौन सी बड़ी बात है? मीट न्यू फोक्स. लोग बोलते हैं ना सीएस का कम्युनिकेशन वीक होता है. क्यों वीक होता है? यू डोंट पार्टिसिपेट. द मोमेंट यू स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन ऑल ऑफ दीज इवेंट्स, अपने आप आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगा. देयर आर लॉट ऑफ पेपर प्रेजेंटर्स ओवर हियर एंड आई वुड लाइक टू congratulate them for even trying to present at the first place, which is by the way the first step in the right direction. And a lot of you are foundation students who are not eligible, तो इतना लोड मतलब अब तक नहीं किया है present तो. And it's not about only paper presentation, it's a lot of other things. So you need to step beyond the office का दरवाजा, आपके घर का दरवाजा, and you need to do something which fellow CA students are not doing. Only then you will stand out from the crowd. Why do you let people do the CA versus MBA comparison? I'm not saying CA is better or MBA is better. वो comparison ही क्यों हो रहा है? Because आज आप effort नहीं मार रहे हो, आप ICI पे डाल रहे हो. A lot of people do that. I'm not saying आप मतलब आप. कि यार ICI कुछ नहीं करता. ICI is taking so many initiatives, including let's say this conference. You have taken the initiative to come to this conference, but there are other students in CSN who've not come. उन्होंने नहीं लिया initiative. You've taken a step in the right direction to come. अब वो लोग बोलेंगे CA is all about studies, तो गलती उनकी है ना कि वो लोग इधर नहीं आए. राइट. आप अपने बाजू वाले को हो सकता है पहली बार मिल रहे हो, जिसको अभी आपने एम्बैरेस किया थोड़ी देर पहले. You probably will go and be very good friends with that person. And I really want to make this point right now. After having attended so many CA student conferences, I know people from legit 50 plus cities of India, and I'm not kidding. 50 plus cities of India, because every conference there is at least let's say 5, 6, 7 cities के लोग into so many conferences, plus दो elocution भी मैंने बोला, plus Sri Lanka. In fact, to the extent that 2019 में I had gone for a CA student conference in Chandigarh. वहाँ पे I met someone named Brahmar Jain. Do you know who Brahmar Jain is? You might not know. Do you? कौन है? He is Year 1 Jan 21 CA final. मैं मिला कब? 2019 में. मेरे को पता था उनको Year 1 आएगा? नहीं पता था ना. फिर भी मैं मिला. We became very good friends to the extent that आज उनको मैं मिलने बैंगलोर जा रहा हूँ. Not even kidding. I'll be flying to Bangalore from here. The whole point is, you never know कौन कब, and I'm not even saying कौन कब काम आ सकता है. How you can become very good friends with someone, how that person can help you. And it is not always in terms of a benefit that you will seek from the other person, but I vibed very well with Brahmar Bhai for that matter. I met two more famous people, who are actually famous. One of them is super famous. One of them is Shubham Malhotra, who was November 18 Inter AIR1, who happened to secure AIR 8 in his CA final. And one of them was Akshat Goyal, who secured AIR 1 in Inter and AIR 2 in CA final. He is the all-time All India highest scorer in CA Inter. उसको 740 मार्क आए थे 800 में से, which is 92% या 93%, और 92%. मैंने बोला भाई मेरे को तो 12th में इतने नहीं आए थे. मैं उसको सच्ची पहली बार मिला, बोला यार तू कैसे ले गया, मेरे को 12th में इतने मार्क्स नहीं है. द पॉइंट इज नॉट दैट. दीज टू गाइज जिनका मैंने अभी नाम लिया, आई वाज विद देम इन दिल्ली येस्टरडे. क्यों? कोई काम नहीं था. वी आर सच गुड फ्रेंड्स दैट विल मेक इट अ पॉइंट टू मीट.
And a lot of other people, it's not just rankers. ये rankers का नाम इसलिए दे रहा हूँ because probably they are well-known people. One of you, Rajan Kabra, AR1, May 22, Inter. I know him. मैं कैसे जानता हूँ पता है? नहीं, so foundation AR1 officially नहीं दिया था. I know he was AR1, 356 if I'm not wrong. 377, okay, this I didn't know. But nevertheless, I know he was unofficially AR1. That's not how I know him. Akshit and Rajan were both at CSN conference last year. And Akshit knew Rajan. That's how I knew Rajan. Before Rajan ke inter results. And when last night I called him to say that I'm coming to your hometown, if you're there, let's catch up. You tend to develop networks via also, even if you don't know anyone personally. And it's not just about networking, yeah, there's so many other things. And again, I'll keep this short, let me not kind of make it longer. But the whole point is, CA is not just about studies. There's so many other things, it's just that you will have to go ahead and take that initiative, which by the way, you all have taken, and again, really pat on the back to you. Kudos to you for having taken that initiative. Please keep doing that, and you will yourself realize over a period of time it is not that tough, and you will yourself notice that change in you. I also got an award called CEO's Young Leader Award at Deloitte, which is by the way a big thing because Deloitte as an organization is super big in India. If you get a CEO's Young Leader Award, which only 2 people in India have got, it's a super big thing. Why I got it? Again, you know, I'm not bragging at all. I'm trying to make a point, and the point is, I did nothing extraordinary. You know, people ask, what is your secret sauce? Or, you know, rankers, what is the thing? There's no secret sauce except for what I'm speaking. It's just that they don't do different things, they do things differently, or they do the things rightly. That's what I would say. Conference का invitation सबके पास है ना. आप लोग आए हो, कुछ लोग नहीं आए. It's your choice ना ultimately. So I did participate in these conferences which my fellow articles didn't. My partner noticed Deloitte में that this guy is taking that initiative, he has it in him, and I got awarded with the Young Leader Award. And ultimately the award itself says Young Leader Award. Leader Award itself means you're taking an initiative by yourself, which people are not. So that is again one learning for you guys. And that was a learning for me, which I am parting with you guys. कि do something unique which people are not doing. Okay. Finally, ये सब छोड़ो. Final का result. चलो result भी छोड़ो. Final की exam की बात करें. This is a super interesting part, by the way. Now I'll come to why I called you all warriors. Can someone take a guess on why I called you all warriors, by the way? Anyone? Any random guess भी चलेगा. मेरे पास chocolate नहीं है, वरना मैं genuinely chocolate देता था. But anyone, wrong answers are welcome. You want to go ahead? Take a chance. CA is a battle. Anyone else wants to elaborate on that? That's a correct answer, by the way. But anyone wants to elaborate on that answer? Okay, let me complete. Because term भी तो मैंने ही दिया है, तो आंसर भी मैं ही दूंगा ना. मैं आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूँ? गलती मेरी है ना. गलती तो ऐसी है कि आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चंस पूछता है आपको कम मार्क्स आ रहे हैं उसमें ऐसी है कि गलती है ना, आपकी गलती तो है नहीं. नेवरदलेस, सो द थिंग इज, अब जेन्युइनली बताओ कितने लोगों को लगता है ये कोर्स टफ है? नहीं, मैंने बोला टफ नहीं है ऐसा मत बोलना, मेरे को एक्चुअली भी लगता है सीए कोर्स टफ है. सो जितनों को लगता है जेन्युइनली कि सीए कोर्स टफ है, हाथ ऊपर करो. बस एग्जाम के पहले. दैट्स अ गुड आंसर, बाय द वे. बाकी लोग को नहीं लगता क्या टफ? आई मीन आई एम हैप्पी इफ यू डोंट फील इट्स टफ, इट्स फाइन, बाय द वे. ओके, नाउ लेट्स आंसर दिस टफनेस थिंग. क्यों लगता है आपको कि सीए कोर्स टफ है? टाइम. एनी अदर आंसर? With articleship it becomes difficult. ठीक है, again the time thing. Syllabus 7200 pages. Anyone else? Passing percentage यार वो तो रिजल्ट है ना. मतलब इट्स नॉट लाइक इंस्टीट्यूट डिसाइड करके बैठता है कि मेरे को 10% लोग को ही पास करना, और करता है तो मेरे को तो नहीं पता. मैं तो हो गया था वो 10% में, इसलिए मैं ना पासिंग. एंड दैट्स द थिंग राइट, कि आप पासिंग परसेंट को क्यों सोच रहे हो? दैट्स एन आउटकम ना.
योर इनपुट इज, सो अगर आप बोल रहे हो मेरे पास टाइम कम है, मेरे को पढ़ने का ज्यादा, दैट्स योर इनपुट, योर आउटपुट इज पास परसेंटेज। वो तो आप एग्जाम दोगे उसके बाद आएगा ना, वो पहले ही सोच लो पास परसेंटेज कम है तो मैं एग्जाम नहीं दूंगा, तो आप तो पहले ही मान रहे हो आप 10% में नहीं आओगे। मान लो एक्चुअली भी 10% लोग पास हो रहे हैं, मैं तो बोलता हूँ 10% छोड़ो, एक ही बंदा पास हो रहा है, आपको ये सोचना है वो एक बंदा मैं होना चाहिए, दैट शुड बी योर माइंड सेट। वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा पर ठीक है, एक बंदा इंस्टीट्यूट एक से तो ज्यादा कोई पास करेगा, इसीलिए डोंट वरी, वो 10% लोग में आप आ जाओगे, ठीक है। सो आई टेल यू व्हाई आई फील सीए कोर्स इज टफ, इट्स बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ कोर्स टू कवर विद इन वेरी लिटिल टाइम। विल मोस्ट ऑफ यू अग्री विद व्हाट आई एम सेइंग? A lot of course to cover within very little time. That's particularly why I find CA course tough. I mean, I really feel if I were to have more time, it's not like concepts आप नहीं सीख सकते, समझ में तो आ जाता है ना यार। It's more like एग्जाम के एक दिन पहले कोर्स खत्म करना डिफिकल्ट है, या वो 3 साल में, या वो 6 महीने इंटर में, या 2 महीने फाउंडेशन में, whatever, वो कोर्स खत्म करना डिफिकल्ट है। That is the whole problem. अब एक बात बताओ मेरे को, आप सभी के पास 3 साल है फाइनल के, आप सभी के पास इंटर के लिए वो 9-10 महीने हैं, आप सभी के पास वो फाउंडेशन के लिए 2 महीने हैं। इफ लाइफ इज अनफेयर टू एवरीवन, दैट इज व्हाट मेक्स इट फेयर। सो इट इज टफ फॉर एवरीवन ना। इनपुट सबके पास सेम है तो 10% लोग पास हो रहे हैं ना, 10% में आप हो जाओ, सिंपल। आई एम नॉट सेइंग सी कोर्स इज नॉट टफ और इट इज टफ, मैं तो बोलता हूँ सोचना ही क्यों है, व्हाई डू यू वांट टू आंसर दैट क्वेश्चन? मैंने पूछा इसीलिए, दैट वुड बी योर आंसर, कि मैंने पूछा इसलिए आप आंसर कर रहे हो, बट इसके बारे में सोचना ही क्यों? यू जस्ट हैव टू थिंक आई हैव टू पास, सिंपल। टफ है, इजी है, मान लो टफ भी है तो भी आपको पास होना है, और इजी है तो ऑब्वियसली पास हो जाओ, फिर तो कोई सवाल ही नहीं उठता पास नहीं होने का। अब लेट मी गिव यू पर्सपेक्टिव। आप ना किसी, हाउ मच टाइम डू यू हैव? 15 मिनट्स। लेट्स अज्यूम नहीं, मान लो आपके घर पे कोई छोटा बच्चा है, या बाजू वाले का कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, वो अभी नर्सरी में, आपका बच्चा नहीं, आपके बाजू वाले का बच्चा। आई नो अ लॉट ऑफ यू आर डूइंग सीए फॉर अ गुड लाइफ पार्टनर विच इज फाइन, बट वो सीए के बाद, ठीक है, अभी रुक जाओ, थोड़ा थम जाओ, सबर का फल मीठा होता है। बट एनीवेज, कम बैक। सो कम बैक। छोटा बच्चा है, मान लो वो नर्सरी में है, वो ABCD लिखना सीख रहा है। क्या आपने देखा है उसको कितना टफ होता है A लिखना या B लिखना? आप क्या सोचते हो यार, A लिखना नहीं आता तेरे को, A कैसे लिखना नहीं आता यार तेरे को? हाउ कैन समवन नॉट नो हाउ टू राइट A? लगेगा कि नहीं लगेगा? बताओ, लगेगा ना? मैं अगर गुजराती में कुछ लिख रहा हूँ, मेरे लिए सुपर इजी, आपको लगेगा ना यार, अगर आपको गुजराती नहीं आती है तो ठीक है कि यार ये कैसे लिखते हैं। सिमिलरली आप कुछ मराठी में लिख रहे हो, मेरे को नहीं आता यार, मेरे को कैसे हो भी अगर मराठी में नहीं बोलना तो बोलते हाउ डू यू नॉट नो? अरे डोंट नो यार। तो आप जब नर्सरी में थे आपके लिए ABCD डिफिकल्ट था, आप जब 5th स्टैंडर्ड में आए तब आपके लिए पैराग्राफ राइटिंग डिफिकल्ट था, आप जब 10th स्टैंडर्ड में आए तब आपके लिए फॉर्मूलाज डिफिकल्ट थे, वो साइंस वाले। आप जब 11th 12th में आए तब आपके लिए जर्नल एंट्रीज डिफिकल्ट थी या नहीं थी? रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, यार हो सकता है नहीं भी हो, कुछ तो डिफिकल्ट होगा यार 11th 12th में, नहीं तो आप 100% वाले हो तो बता दो यार। मतलब मेरे को तो नहीं आया था, मेरे को कुछ तो डिफिकल्ट लगता था यार, मतलब ठीक है। जब मैं CPT में था तब मेरे को CPT डिफिकल्ट लग रहा था, इसलिए मैं 100 की माला जप रहा था। जब मैं इंटर में था तब मेरे को इंटर डिफिकल्ट लग रहा था, इसीलिए मैं 400 की माला जप रहा था। सिमिलरली जब मैं फाइनल में हूं, मेरे को फाइनल टफ ही लगेगा ना। बट थिंक ऑफ इट दिस वे, एट एवरी स्टेज इट हैज बीन टफ ऑल दिस वाइल। What is that extra thing about CA course? The fact that passing percentage 10% है। बताओ। I know we have less time. I'll try to summarize it, but nevertheless 10 मिनट और लगेगा। ये मोटिवेशन देना है अगर तो 10 मिनट लगेगा। रुक जाओगे ना खाना खाने के लिए? You have your answer. इसके लिए वक्त ही वक्त है, देखो आपकी ऑडियंस ही बोल रही है। एनीवेज चलो, कम बैक। डिड यू गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ऐसा नहीं है कि टफ नहीं है, बट द होल पॉइंट ऑफ द कोर्स इज इट इज डूएबल। अगर 12,000 लोग हर एग्जाम में कर रहे हैं, यू कैन बी अमंग्स दोज 12,000 पीपल, फुल स्टॉप। पासिंग परसेंटेज या फिर किसी का बोलना टफ शुड नॉट डिटर यू। येस, टाइम इज अ कंस्ट्रेंट, नेवरदलेस
बट उसका भी जवाब है मेरे पास। आप बोलोगे मेरा यार पूरा सिलेबस खत्म नहीं हो रहा एग्जाम के 1.5 दिन पहले, ठीक है, मेरे को एक बात बताओ, आपको सीए एग्जाम्स में 100 में से 100 मार्क लाने हैं। कितने लोग हैं जिनको 100 में से 100 मार्क लाने हैं? ऑनेस्टली बताओ, लाने हैं तो अच्छी बात है बाय द वे। कितने लोग हैं ऐसे जिनको 100 में से 100 मार्क लाने हैं या 800 में से 800 मार्क लाने हैं? 800 में से 800, हाँ, 2 लोग। हाँ चलेगा चलेगा, आपको नहीं लाने, अरे ठीक है यार, मैं समझ गया, मेरे को भी नहीं लाने थे, इट्स फाइन। और जिनको लाने बाय द वे यू शुड कीप दैट टारगेट। आई नो पीपल हु केप्ट दैट टारगेट। द होल पॉइंट इज 80% पे तो यार वन आ जाता है यार। आपको 100% लाने की जरूरत नहीं है सीए बनने के लिए। पेपर 120 मार्क का होता है, पासिंग कितने? 50 यार, एग्रीगेट 50, वैसे सब्जेक्ट वाइज 40, बट मान लो हर सब्जेक्ट में 50 लाने हैं। पासिंग कितने? 50। पेपर कितने मार्क का होता है? 120। ऑप्शन क्वेश्चन भी एक होता है, क्वेश्चन 1 ऑप्शन में नहीं होता है, बट बाकी सब में तो होता है ना। तो आपको 120 में से 50 मार्क लाने, विच इज हाउ मेनी परसेंट? कैलकुलेट करो ना, रफली 45। आप 45% नहीं ला सकते हो, बताओ। द मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ इट दिस वे, यू ब्रेक इट डाउन, अरे मेरे को 45 लाने तो भाई 2 चैप्टर छूट गए तो ठीक है ना, क्यों लोड ले रहे हो? आप अगर 80 मार्क का पेपर भी अटेम्प्ट करके आ रहे हो और वो 80 मार्क अच्छे से अटेम्प्ट करके आ रहे हो ना, आपको 65 या 70 मार्क्स आ ही जाएंगे, आएंगे या नहीं? अब वो 80 मार्क आप अच्छे से नहीं लिख रहे हो तो आपकी गलती। अगर आपने 10 में से 8 चैप्टर किए हैं, 8 अच्छे से करो, वो फिर नहीं अच्छे से करो तो आपकी। एंड बाय द वे इन नो मींस आई एम सेइंग के 2 चैप्टर छोड़ने चाहिए, आई एम नॉट इन दैट फेवर। बट अगर छूट गए, आपका कोर्स खत्म नहीं हुआ, तो भी आप पास तो हो सकते हो ना। आप उसी टाइम पे द मोमेंट आपके 2 चैप्टर छूटे, आपने सोच लिया यार ये पेपर तो मेरे से नहीं होगा, दैट इज वेरी यू लूज द बैटल। वो MS धोनी मूवी में है ना, पता है गेम हम कहाँ हारे? वहाँ बास्केटबॉल कोर्ट पे। तो गेम आप कहाँ हारते हो? एग्जाम हॉल में नहीं, आप एग्जाम हॉल के पहले ही गेम हार जाते हो। अगर आप एग्जाम हॉल तक पहुंच गए तो आपने आधी जंग नहीं जीत ली है। एंड इसलिए हेंस द बैटल। Battle is to do with the mindset. I actually compare, and this is by the way my analogy, CA exams with Mahabharata. And I'll tell you also why. Because आप अर्जुन हो, जो बेचारा सुपर कंफ्यूज्ड है, और महाभारत की बैटल 18 दिन चली थी। CA एग्जाम्स भी 16 से 18 दिन के बीच में चलती है। तो मैं तो बोलता हूँ महाभारत है, एंड यू आर ऑल वॉरियर्स, तो be proud of yourself that you are fighting the battle of Mahabharata. That in itself is a big achievement. The moment you start thinking, and by the way, मैं जब फाइनल के एग्जाम्स के लिए पढ़ रहा था ना, I had lesser stress or pressure than I had during inter. क्यों? Because now I knew it is doable. I told you the term doable. Every time you feel stress or pressure, you tell yourself it is doable. And it actually is doable. I told you all the examples. I'll leave you with the last couple of examples. Before audit exam, CA final audit exam, time was a constraint as always. पेपर खत्म, पेपर तो चलो छोड़, पेपर बात की बात है, कोर्स खत्म नहीं हो रहा था ऑडिट का। सर आपके टाइम पे भी ऑडिट टफ ही होगा ना? आपने जब ऑडिट की एग्जाम दी होगी, डिफिकल्टी होगा ना? The one single, and by the way audit मैं इसलिए बोल रहा हूँ because that is one thing that you can all resonate with. Audit ना आपके लिए भी टफ है, मेरे लिए भी टफ है। अगर आप बोल रहे हो मेरे को ऑडिट में 40 मार्क्स लाना डिफिकल्ट है, तो वो तो रैंकर के लिए भी डिफिकल्ट है, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एग्जाम के 1 दिन पहले मैंने क्या सोचा पता है? कि यार अब मेरा कोर्स खत्म नहीं हो रहा है, मैं सोचा कि कल मेरे लाइफ की लास्ट ऑडिट एग्जाम है। टू पुट इट इन अदर वर्ड्स, this is, I want this to be the last audit exam of my life. I'll repeat, I want this to be the last audit exam of my life, which means मेरे को एक और बार ऑडिट नहीं पढ़ना है, which means कुछ भी हो कल मेरे को क्लियर होना है। मैंने ये डिसाइड कर लिया। अब मेरे को अगर रात भी जागनी पड़ गई, जाग लूँगा, 1 दिन की बात है, जाग लेंगे। क्यों? क्योंकि कल मेरे को क्लियर करना है लाइफ की लास्ट ऑडिट एग्जाम है। मैंने ये सोचा, एंड आई कुड एक्चुअली स्टे अवेक, एंड द टेक अवे इज नॉट दैट आपको रात को जागना है, मत जागो, दैट इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज द होल माइंडसेट थिंग। मेरा भी कोर्स खत्म नहीं हो रहा था एज ऑल ऑफ यू,
The same constraint I also had. It's just a different way of tackling the same thing, which is now you think I want to do it. Doable वाला point. हमारा पेपर जुलाई 21 का ऑडिट पेपर सी फाइनल was the toughest in at least 5 years, 10 years, and I'm not saying this. A lot of other people have said this. मैं ना पेपर चालू किया सर, क्वेश्चन 1 देखा, आता नहीं रहा, ठीक है पीछे से चालू करते होता है, क्वेश्चन 1 तो टफ होता है, पीछे से चालू किया, समझ में नहीं आ रहा है, मैंने बोला कोई और बुक पढ़ के आ गया, मैंने बीच में से रैंडम क्वेश्चन उठाया पेपर के बीच में से, वो भी नहीं आ रहा, मैंने बोला यार ये क्या हो गया, मैं कौन सी बुक पढ़ के आ गया यार। पर मेरे को ना उस टाइम पे टेंशन नहीं, मेरे को हंसी आई, क्यों, बिकॉज मेरे सारे फ्रेंड सेम ही बुक पढ़ के आए हैं, मतलब फेल होगा तो मैं अकेले तो फेल होंगे नहीं, सब फेल होंगे, पर ये तो होने नहीं वाला कि सब फेल होंगे, ऐसे किसी को तो पास करेगा, विच मीन्स मेरे को पास होना है। अगर ICI किसी को भी पास करेगा, आई हैव टू बी दैट वन पर्सन हु ICI विल पास। हेंस इंस्टेड ऑफ गेटिंग वरीड कि यार मैं गया अब मई के बाद नवंबर, नेक्स्ट अटेम्प्ट में, अभी के लिए टाटा बाय बाय सी यू, नहीं, उस टाइम पे पेपर लिखो। एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड था, उसका पता है, एंड ही इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड ही इज़ द 7 आवर्स पढ़ने वाला गाय, तो उसका ना कोर्स 50% हुआ था ऑडिट का, वो तो खुश हो गया, एग्जाम का पेपर टफ है ना, बोले कि अब तो जो लोग पढ़ के आए उनको भी पेपर नहीं आता क्योंकि पेपर टफ है, मैं तो नहीं पढ़ के आया, मेरे को भी नहीं आता, वी बोथ आर एट पार, क्या फर्क पड़ रहा है, बंदा पास हो गया, ही गॉट 50+ मार्क्स इन ऑडिट। क्यों, माइंडसेट। उस टाइम पे ड्यूरिंग दोस 3 आवर्स ऑफ एग्जाम अ लॉट ऑफ पीपल गिव अप कि यार हमसे नहीं होगा, लॉट ऑफ पीपल स्टूड अप इन 1 आवर सेइंग हम ना नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करते ताकि उसमें एग्जाम्शन आ जाए, उसमें तो एग्जाम्शन आया नहीं, ये तो गया, पूरा ग्रुप वापस दो आप। यही चीज़ आपको नहीं करनी है, ये लोग करते हैं जो लोग गलती करते हैं, ये नहीं करना है। उस टाइम पे वो 3 आवर्स में ऐसे लड़ो बैटल, एंड हेंस आई कॉल दिस अ बैटल, like it is a do or die situation. You have to win the battle. There is no getting away from it, you have to win it. And it is not just audit, it is any exam that we talk about. You have to win that battle anyhow. ठीक है? 2 more takeaways, and I know I keep saying 2 more, and I say a lot of things, but I want to share a lot of my learnings with you, which have really helped me. And I know I am in way of you and your food, so I will not take much time. One thing is the thing that really helped me sail through the whole CA journey was my friends. My friends within CA. The thing is, आप जब 6 महीने एक रूम में बैठ के पढ़ रहे हो CA फाइनल के लिए, एंड ये होगा आपके आर्टिकल चिप के बाद 6 महीने बाद CA फाइनल होगा, आप एक रूम में बैठ के पढ़ोगे, यू विल गेट फ्रस्ट्रेटेड, एंड दैट इज बाउंड टू हैपन, राइट, बिकॉज पूरा दिन आपको पढ़ना है, इंटर में 70-200 है तो फाइनल में मान लो डबल होगा तो 14,000 पेजेस पे आपको पढ़ने हैं, तो you'll get frustrated. But the moment you find out you are not alone, आपके फ्रेंड्स भी है जो पढ़ रहे हैं वो 14,000 पेजेस, होता है ना, फिर यू फील लेस बैड, ठीक है यार मैं अकेला नहीं हूँ, या भाई होता है ना कि मैं अकेला ही हूँ जो वो पार्टी मिस कर रहा हूँ, तो आपको ज़्यादा खराब लगेगा, भाई तूने भी पार्टी मिस की, हाँ यार मेरी भी एक पार्टी मिस हो गई, मेरी भी एक शादी में, कोई नहीं यार साथ में गोवा चल लेंगे। जेन्युइनली जब ये होता है ना, इतना कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इतनी खुशी होती है ना, इतना मोटिवेशन बढ़ता है, 2 घंटे ज़्यादा पढ़ोगे उस दिन, आप देखना गोवा के नाम से। And Goa as an analogy, you get what I am saying ultimately. When you have that companionship within the CA course, few people who you can really rely on. When you are super frustrated and you know you can speak to this person, जिससे बात करके आपका सारा frustration गायब हो जाएगा and आप में motivation आ जाएगा। ऐसे लोगों के साथ टच में रहना। और मैं अभी से बोल रहा हूँ, a lot of you are in CA foundation. Do stay in touch with such people. I had formed Telegram groups with we are a group of 12 friends. हम लोग टेलीग्राम ग्रुप्स बनाए थे फॉर डाउट सॉल्विंग सब्जेक्ट वाइज। आउट ऑफ 12 of us, 11 of us ended up clearing in the first attempt. The 12th one also cleared ultimately, and 3 of us ended up getting an all India rank, which is a great feat. You see the conversion ratio, 25% people out of that 12 का group ended up getting an all India rank, and 11/12 passing percentage निकालो 11/12 का, more than 90%। फिर अब सब वो 10% पे अटक जाते, ये सोचते कि भाई तू और मैं दोनों कंपटीशन में, या तू पास होगा या मैं पास होऊंगा, ऐसे सोचते तो ये नहीं होता ना। इट वॉज नेवर अ कॉम्पिटिशन बिटवीन अस,
हम लोग साथ में कर रहे हैं. So companionship is one more takeaway and feedback that I will leave you with. I think I've left you with a lot of points. In summary, self-belief, optimism, good companionship. लोगों की मत सुनना क्योंकि ठीक है. Thank you everyone. All the best. What a journey, really. What a roller coaster of a journey. Well, everyone is requested to kindly settle down. There are still 5 minutes for lunch. Please stay back. Well, one thing about roller coaster is that in the end, we all enjoy the adrenaline rush. Now, I request Srinivas to kindly present Sir with a memento and thank him for his time here today. Everyone is now requested to kindly head towards the lunch area. We will all see you back for the next session. You all have 20 minutes for lunch. Please be back soon because the next speakers will be here quickly. Also, one more thing, may I have your attention please, everyone? In the valedictory session, we will be conducting a lucky draw. Everybody is requested to stay in the hall itself in the valedictory session as well. Thank you. You all can head towards the parking area.